Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8, subject English, topic summary of the poem Stars Speak to Man. Dear students, today I discuss with you in this offline class a summary of the poem, and the name of the poem is Stars Speak to Man. Dear students, yesterday I completed this poem and I discussed with you in detail in two classes what is actually this poem is. Actually, this poem is written by Abdullah Azad, a famous Kashmiri poet, जिसका नाम है Abdullah Azad, and this poem is translated by in English language, and the name of that poet is Professor J.R. Malik. प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ये पोइम है, जो ये नज़म है, ये एक कश्मीरी पोइट जिसका नाम है अब्दुल्लाह आज़ाद, इसी ने लिखी है कश्मीरी जबान में, और इस नज़म को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसकी ट्रांसलेशन की है प्रोफेसर J.R. मलिक ने. लेकिन जो ये पोइम है ये इंसान के बारे में है. कश्मीरी जबान में इस पोइम का इस नज़म का जो टाइटल है वो है इंसान सुकून, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है, इसका टाइटल है Stars Speak to Man. Now I shall start summary. This poem Stars Speak to Man is written by a famous Kashmiri poet Abdullah Azad and is translated by Professor J.R. Malik. In this poem, the stars speak to man. The stars tells the man that he was born with the light of reason, but he chose to be fire and thus brought humiliation to man because of his carelessness. They tells to man that nature had fashioned him to oppose to love and affection, but he took to buying and selling religion and faith. Nature had bestowed all his treasures upon him to share them equally, but man's selfishness lead him to set like serpent on them. All human belongs to the same race, but man created division on the basis of religion and faith. Because of man's shameful deeds, humanity has fallen into lament. Religion leads to human value and human unity, but is your mischief, which was called awakening, is basically an intoxicating sleep. It is man's own deeds which have deluded him, and he complains against fate. It is nothing but a fanciful dream. So stars tells man to wake up from this dream and tell us that when you consider as enemies are basically like parts of his own heart. So how can he break his own heart to pieces? The stars tells man he should not plunder his home by doing such inhuman acts. प्यारे बच्चों, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा. This poem Stars Speak to Man is written by famous Kashmiri poet Abdullah Azad and is translated by Professor J.R. Malik. ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो ये पोइम है, ये जो Stars Speak to Man, ये एक्चुअली कश्मीरी नज़म है, और कश्मीरी नज़म में कश्मीरी ज़बान में ये लिखी है. एक कश्मीरी का एक मशहूर शायर है जिसका नाम है अब्दुल्लाह आज़ाद, इसी ने कश्मीरी ज़बान में लिखी है ये नज़म, और इस नज़म को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उसका नाम, उस पोइट का नाम है प्रोफेसर J.R. मलिक. ये क्लियर है, मैंने पहले भी आपको कहा था. In this poem the stars speak to man. इस पोइम में स्टार्स कह रहे हैं इंसान को, तारे कह रहे हैं इंसान को. इंसान, the stars tells the man that he was born with the light of reason, but he chose to be fire and thus brought humiliation to man because of his carelessness. इंसान, स्टार्स टेल्स में दैट ही वाज बॉर्न विद द लाइट ऑफ रीजन. आप इस दुनिया में इसलिए, आपको इस दुनिया में इसलिए लाया गया कि आप क्या करोगे यहाँ पर? लाइट ऑफ रीजन. आप यहाँ पर जब हम ये कश्मीरी पोइम देखते हैं, कश्मीरी नज़म देखते हैं, तो वहां पर पहले भी लिखा गया है गाट जार नूर से लोग इंसान चाहे गाट जार, इसी को यहाँ पर लिखा गया है विद द लाइट ऑफ रीजन. गाट जार नूर अचानक लाइट या दुनिया, मगर क्या कोर दुनिया मज इंसान, बट ही चूज टू बी फायर, नार, but he chose to be fire and thus brought humiliation to man because of his carelessness.
करतूतों से पनी खुदगर्जी से कर से इंसानियत बदनाम brought humiliation to man because of his carelessness पनी इमो करतूतों से पनी खुदगर्जी से कर से इंसानियत बदनाम भी तवे इस वना चोसु गाड़ जार गुर चलो नार इंसानो कर इंसानियत बदनाम आ बेआर इंसान ए इंसाना तो जो बेआर हरा चांस गसी हमदर्दी वाते बेगिस मगर चे क्या करे कम चे बनाओ बेआर चे करे इंसानियत बदनाम ये and thus brought humiliation to man because of his carelessness. Then tell us to man that nature had fashioned him to oppose to love and affection, but he took to buying and selling religion and faith. यहाँ पर लिखा गया मोहब्बत बगरावान को तब करे न कुदरतन पैदा इंसान मोहब्बत बगरावान को तब करे न कुदरतन पैदा मोहब्बत सान प्यार सान करे न खुदाइन पोल आया न क्या दुनिया चलो को दीन ईमान करून बापार इंसान चलो ये क्या करूं चलो लोग पाने साथ दीनस पाने साथ इस्लामस पाने दीनस ते ईमानस लोग से बापार करूं इसलिए यहाँ पर लिखा गया they tell us the man that nature had fashioned him to oppose to love and affection देखो मोहब्बत बगरावान कोता करे न कुदरतन पैदा but he took to buying and selling religion चलो को पाना दीन ईमानस बापार करून and faith nature had bestowed all his treasures upon him to share them equally but man's selfishness lead him to set like serpent on them यहाँ पर लिखा गया कश्मीर में था यानी कुदरतन पनन खजाना ठान मसरे है इंसान से था यानी खुदाइन पनन तमाम खजाना ठान मसरे ये वो नेचर had bestowed all his treasures upon him से था यानी तमाम खुदाइन करने तमाम खजान से आता to share them एक बार से उसे बगरे इंसान से खुदाइन खजान सो जाने से उसे बगरे विकन मगर क्या कर इंसान but man selfishness lead him to set like serpent on them मगर से बिल्कुल तुम्हारे अर्जदार so बिल्कुल आद उन खजान पर अर्जदार पर so बने आपको लालची so तो बती उन खजान के सारी बाकिन गैस नवातों के ये गो था इन्हें कुदरतन पनिन खजान ठान मसरे so उसे बगरे विकन बने आप शामार इंसान से बनाओ से बिल्कुल शाहमार पॉइंट आप पर दोस्त उन खजान पर बिल्कुल शाहमार पॉइंट से ये लालच कि हम सॉरी मगर चोसी बगरे लेकिन चोसी ये कारण के all human belongs to the same race but man created division on the basis of religion and faith all human belongs to the same सारी इंसान चे एक नस्ल सारी इंसान चे एक नस्ल खून चुकुने सारी इंसान चुकुने कुने all human belongs to same race हम तो सभी इंसान एक ही नस्ल के हैं बट मैन क्रिएटेड एक इंसान ने क्रिएट किया डिवीजन तकसीम कारी एक इंसान ने किए एक दूसरे की जब एक दूसरे का ये हमदर्द नहीं बन गए आज का इंसान ये इंसान ने खुद क्रिएट किया है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन मजहब की बुनियाद पर उसने यहाँ पर ये यहाँ नफरत के मजहब की बुनियाद पर उसने यहाँ पर तकसीमकारी की नफरत की मजहब के बुनियाद पर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड फेथ और मजहब और फेथ की बुनियाद पर उसने यहाँ पर तफरका किया एक इंसान ने बिकॉज ऑफ हिज मैन्स शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू दैम इंसान की जो शेमफुल डीड्स है जो इंसान की जो शर्मनाक हरकत है इस शर्मनाक हरकत से इस खुदगर्जी से इंसान की खुदगर्जी से ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू दैम जो इंसानियत है वो मातम करते हैं इस पर इंसानियत ह्यूमैनिटी में यानी कि इंसानियत ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू लिमिट इंसानियत इस पर मातम करते हैं कि इंसान ये क्या क्या है इंसान उसको कहते हैं जिस इंसान में इंसानियत हो जिस इंसान में इंसानियत नहीं हो वो उसको इंसान हम नहीं कह सकते वो वैश्य जानवर है इसलिए यहाँ पर लिखा गया बिकॉज ऑफ मैन शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू लिमिट इसलिए जो इंसान की जो शेमफुल डीड्स है शर्मनाक हरकतें हैं ह्यूमैनिटी हैज अब जो इंसानियत है वो अब मातम करते हैं इस इंसान पर कि इंसान ने अब क्या किया रिलीजन लीड्स टू ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमन यूनिटी बट इज योर मिस्ट्री व्हिच वाज कॉल्ड अवेकनिंग इज बेसिकली ऑन इंटॉक्सिकेटिंग स्लीप यहाँ पर लिखा गया है ज्योति ब्रह्म पन्ने नवी कारो जवान छु किस्मत वारो तरान छु प्राणी वे तारो लगी कतार इंसाना रिलीजन लीड्स टू ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमन यूनिटी मजहब हमें यह सिखाता है कि हमें इंसानी तौर पर रहना चाहिए हमें एक इंसान को दूसरे इंसान का हमदर्द बनना चाहिए एंड ह्यूमनिटी और हमें ह्यूमन यूनिटी करनी चाहिए हमें एक इत्तेफाक पैदा करना चाहिए हमें एक दूसरे का हमदर्द बनना चाहिए बट
What is your mischief which was called awakening? लेकिन आप जो गलतियां करते हैं, आपका जो मिस्टीफ बिलीफ है, which was called awakening is basically जो आप इसी को, जो आज के दौर का जो इंसान है वो दूसरे का दुश्मन बन गया है, वो वैशी बन गया है, वो उसको बोलते हैं ये मेरी तरक्की है, ये मेरी अवेकनिंग, ये मेरी बेदारी है, ये एक्चुअली उसका भ्रम है। अवेकनिंग इज बेसिकली ये इंटॉक्सिकेटिंग स्लीप है। आप खाली गफलत में इंसान, आप खाली गफलत में, उसको ये तरक्की नहीं है, आप हमदर्द नहीं बल्कि आप वैशी जानवर बन गए आज के दौर में। It is man's own deeds which have deluded him and he complains against fate. इंसान अपने करतूतों से बदनाम हुआ है, अपने करतूतों से वो पीछे रह गया है। अब वो क्या कर रहा है कि मेरा किस्मत खराब है, वो मुख्तलिफ मामलों में अब फंसा हुआ है। अब ये कह रहा है कि मैं तरक्की नहीं करता हूं, हता कि इसलिए तरक्की नहीं करता है, उसके दिल में फांसी है, उसका दिल वो साफ नहीं है। अब ये कह रहा है जब ये तरक्की नहीं करता है, अब ये कह रहा है कि मेरा किस्मत खराब है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जवान जुति ब्रह्म पन्ने कारो, जवान छु किस्मत बारो, तरह छु प्राणी तारो लगी कतार। इंसान आप नहीं पार हो जाओगे, आप खुदगर्जी में मुब्तला हो। इसलिए यहाँ पर इज कॉल्ड अवेकनिंग इज बेसिकली एन इंटॉक्सिकेटिंग स्लीप। इट इज मैन्स own deeds which have deluded him and he complains against fate. हालांकि इंसान की खुद जो उसने अपने करतूतों से, अपने जो कामों से इंसान को बदनाम किया है, which have deluded him, वो उसने धोखा दिया है, डिल्यूड किया him and he complains, और फिर ये किस्मत का बारो दे रहा है कि मेरा किस्मत खराब है। It is nothing but a fanciful dream, so Stoll tells man to wake up from this dream and tells that when you consider as enemies are basically like parts of his own heart, so how can he break his own to pieces? जवान छु पन्ने से बागस मूलुन द्रो पत्रन सर गरस पन्ने से सुचुपाने कराल और पार इंसानो कोरत फितनन फसाद नाव दीन दरी मतन दरी वनान ये चुकसु बेदरी इसी खुमार इंसाना इसी खुमार। आप बता इंसान आप क्या कर रहे हैं? It is nothing but a fanciful dream. ये आप ख्वाब में इंसान जो आप कर रहे हैं इस वक्त, आप उसको बोलते हैं ये मेरी तरक्की है, यही मेरा करना है। एक्चुअली ये आपका ख्वाब है। इट इज नथिंग बट ये कुछ नहीं है, ये आपका ख्वाब इंसान। आप खाली गफलत में, आप बेदार हो जाओ, आप इस वक्त इंसान बनो, इंसान की तरफ रहो इस समाज में। सो स्टॉल टेल्स मैन टू वेक अप, आप जागो इंसान, आप जागो, इस बर्बादी से जागो, आप इंसान बनो इस समाज में। फ्रॉम दिस ड्रीम एंड टेल अस दैट, और इस खाली गफलत से जागो और इंसान की तरह रहो इस दुनिया में। एंड टेल अस दैट व्हेन यू considered as enemies are basically like parts of his heart, but so how can he break his own pieces? इसलिए आप दूसरे के दिल जीतो, इंसान आप दूसरे के दिल जीतो। आप दुश्मन, आप अपने आप ये सोचो कि मेरे दुश्मन है, आपका दुश्मन कोई नहीं है। जब आप हमदर्द से दूसरों के साथ पेश आओगे, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हमदर्द के साथ पेश आएंगे, और ये नफरत जो तफरुक है वो ऑटोमेटिकली इस समाज में खत्म हो जाएगा। इंसान इस वक्त आपको टाइम है, आप जाओ इस खाली गफलत से जाओ। The Stoll tells man he should not plunder his home by doing such inhuman acts. इंसान आप अपना जो घर है उसको मत उजाड़ो, उसको मत बर्बाद करो इन जो आप कर रहे बाय डूइंग सच इनह्यूमन एक्टिविटीज, जो आप इन ह्यूमन एक्टिविटीज करते हो, इनसे आप बेदार हो जाओ। ऐसा मत करो, आप ऐसा काम करो जिससे समाज खुश हो, जिससे समाज ठीक रहे, ताकि दुनिया आगे चलेगी और इंसान भी दिन में तरक्की करे। लेकिन एक इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस poem very keenly, and accordingly you write down this summary on your English exercise notebook and also memorize this poem. Thanks.